Most students preparing for MBA entrances think about CAT is the only exam that can lead to Tier 1 colleges admission. But that's not the truth. And exams like SNAP and NMAT also opens the door for top Tier 1 colleges like NMMS Mumbai, SIBM Pune and SCMHRD Pune, and the list is not exhaustive. So in today's video, we are going to talk about everything about SNAP exam, its pattern, difficulty level, preparation strategy, and how to crack it. The SNAP exam is conducted by Symbiosis International University for admission into its institutes like SIBM Pune, SCMHRD Pune, SIIB, and many more. It's one of the fastest MBA exams. Like you'll get 60 minutes for solving 60 questions, like 1 minute for each of the question, which makes speed and accuracy the best weapon that you can use. So before I dive into the SNAP exam pattern, here's something important. बहुत सारे बच्चे जो एनमेट और स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर कैट की प्रिपरेशन करना है तो कैट का लेवल, स्नैप का लेवल, एनमेट का लेवल डिफरेंट होता है. तो उस डिफरेंस को आप मेंटेन कर सकते हो एक डिफरेंट बैच ज्वाइन कर, जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है वो आप कर पाओ पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, बिकॉज सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग इज डिफरेंट इन कैट एग्जाम एज वेल एज इन स्नैप एग्जाम. So to solve this problem, iQuanta has launched its NMAT plus SNAP specific OMAT batch. Like in this batch, you will be taught NMAT and SNAP related questions and its concepts. Here's what you will get if you get enrolled. Pre-recorded videos, 200 plus for quants, 100 plus for LRDI, 100 plus for VRs, 160 plus hours of NMAT and SNAP specific live sessions. If you talk about mock test, then there will be 10 plus full length NMAT mocks and 10 plus full length SNAP mocks, along with 4,000 plus practice questions and previous year questions in a quiz format. Extra support, 24/7 doubt solving, PDF notes on important words, idioms and phrases, and detailed guidance on how much and when you need to take NMAT. The results speak for themselves. 300 plus students have converted NMIMS Mumbai and 400 plus students converted SIBM and SCMHRD from iQuanta last year. If you want to check out more about this batch, the link is in the description and also in the pinned comment. Now let's talk about the SNAP's exam pattern. So SNAP में 3 sections होते हैं. First is the general English. इसमें आपके around 15 questions आते हैं. English means इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि passage बहुत सारे आ रहे हैं जैसे कि CAT में होता है. इसमें आपके आते हैं sentence wise questions या फिर कुछ words वाले questions, idioms वाले, phrases वाले, ऐसे questions ज्यादा रहते हैं जो कि 1 मिनट में solve करना is easy. तो उसी तरीके से रहता है जैसे कि आपने अगर एसएससी के एग्जाम देखे हो या फिर जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा सा सिमिलर आता है स्नैप के अंदर क्वेश्चन. नेक्स्ट इज एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग. इसमें 25 क्वेश्चंस करीब आते हैं. ये जो एलआरडीआई सेक्शन होता है कैट का उससे सिमिलर होता है, बट क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े सेट्स आते हैं, इसमें बड़े बड़े सेट्स ना आके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर. फॉर एग्जाम्पल नंबर सीरीज हो गई या फिर कुछ आइडेंटिफाई करना है या फिर कुछ सिंबल वाला जो आंसर्स देने होते हैं जैसे प्लस मीन्स दिस, ऐसा ऐसा करके जो होते हैं वो वाले क्वेश्चन जो सॉल्व कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें एंड इट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व देम. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्वांटिटेटिव डीआई एंड डेटा सफिशिएंसी एरिया एंड इसमें आपके आएंगे अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस. तो इसमें आपका मैथ्स आता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक बेसिक काइंड ऑफ मैथ्स दैट यू विल गेट इन एनी ऑफ द वोमेंस एग्जाम एंड इट इज क्वाइट डूएबल. आप लोग कर सकते हो इसको आराम से. सो पॉजिटिव मार्किंग की बात करें तो +1 आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलता है. नेगेटिव की बात करें तो 0.25, दैट इज 25% आपका नेगेटिव में करता है. जैसे कि कैट में आपका 33% नेगेटिव मार्किंग होती है, इधर आपका 25% नेगेटिव मार्किंग है. This is similar to like what JEE mains and JEE exams have. अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है कैट का और स्नैप का, कि कैट स्नैप के अंदर ज्यादा डिफरेंस क्लियर होता है लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन से, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं. तो जो लोग ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे उनका स्कोर बहुत बूस्ट हो जाता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैट एंड स्नैप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस. तो कंपेयर टू कैट, स्नैप इज अ लिटिल बिट इजियर बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन नाउडेज, सो परसेंटाइल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. कभी कभार ऐसा होता है कि किसी बच्चे के कैट में ज्यादा परसेंटाइल आ रहे हैं बट स्नैप में नहीं आ पाते, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत है, क्योंकि कुछ कुछ लोग सिर्फ स्नैप देते हैं बिकॉज कैट उन्हें टफ पड़ता है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कौन सा दिन अच्छा जाता है, बट प्रैक्टिस तो आप लोग ऑफ कोर्स करना ही है एंड उसके लिए आप लोग बैचेस ज्वाइन कर सकते हो. एक बैच तो मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को.
एंड इफ यू टॉक अबाउट वर्बल, तो आरसीज जो होते हैं वो मतलब बहुत बेसिक लेवल का रहेगा, एंड वीए भी बेसिक लेवल की रहेगी। बस जो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो थोड़े से अगर आपको वर्ड्स नहीं आते तो आपको डिफिकल्टी लेवल हो सकती है, ग्रामर वगैरह इजी रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स बुक्स करते हो, क्वेश्चंस करते हो, पीवाईक्यूज, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस। बट रिमेंबर, द चैलेंज इज नॉट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन, इट्स जस्ट द टाइम प्रेशर, बिकॉज आपको 60 मिनट्स के अंदर 60 क्वेश्चंस करने हैं, एंड वो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वाली चीज है। और आप अगर इसको मास्टर कर लेते हो तो आपने स्नैप एग्जाम क्रैक कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर स्नैप एग्जाम। सो फॉर कॉन्ट्स, आप जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस हो गया, इनके बेसिक बेसिक एलओडी 1 और एलओडी 2 अगर आप सॉल्व कर लेते हो, जितने भी जैसे टाइम एंड डिस्टेंस है, जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं, वो ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। वर्बल में अगर बात करें तो ईडियम्स, फ्रेजेस, अपनी जो ग्रामर है उसको ब्रश अप करो, और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स सीखो, नए नए वर्ड्स, क्योंकि मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आ जाते हैं। तो ये सब आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, एंड जो ईडियम्स, फ्रेजेस वगैरह हो सकते हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लो। लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करूँ, सबसे ज्यादा आपको अपना टाइम यही डेडिकेट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट बिकॉज इसका सबसे ज्यादा वेटेज है पूरे स्नैप एग्जाम के अंदर। एज आई सेड बिफोर, इट कंप्राइज ऑफ 25 क्वेश्चंस, तो इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो अगर आप इसमें मास्टर कर लेते हो तो आपका कंपैरेटिवली स्कोर ऊपर जा सकता है। एंड इसको मास्टर करने के लिए आपको बेसिक एलआरडीआई के जो सेट्स होते हैं उनको करना है, और जो सिंपल नंबर सीरीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे एलआर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करो। पीवाईक्यूज आप लोग करोगे तो आपको समझ में आना जाएगा कि कैसे करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉक्स। तो अगर मॉक्स की बात करें तो कम से कम 8 to 10 मॉक्स आप लोग दो, जिससे कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आने लगे कि किस तरीके से मुझे फॉलो करना है, कौन से क्वेश्चन मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, किसको स्किप करना है, इफ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। स्नैप इज नॉट अबाउट डेप्थ लाइक कैट एग्जाम, इट्स अबाउट स्पीड, एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग। If you can master LR and maintain accuracy of 80 to 85%, you can easily target SIBM Pune and SCMHRD Pune. And with the right guidance, every student there who didn't perform their best in CAT exam can definitely crack SNAP exam. So this is it for this video, and if you want to check more about iQuanta's batch, the link is in the description and in the pinned comment. You can also join their free WhatsApp group for any resources and updates. Link is in the description below. एंड अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे कि आई विल मेक मोर वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।